अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास ऑफ केमिस्ट्री। प्रीवियसली आपने पढ़ा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन एंड you studied about two branches, physical chemistry and organic chemistry. In physical chemistry, you said the physical properties of matter, जिसमें you use five senses of your observation. And the other one, organic chemistry, in which you studied about petrochemical products and medicines. You said कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिन्हें हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स. एंड इन फिजिकल केमिस्ट्री यू सेड द मैटर, physical properties and the changes in them is studied in physical chemistry. So today's lecture is inorganic chemistry, biochemistry, industrial and nuclear chemistry, which is on page number 2 and 3 of your textbook. So starting from inorganic chemistry, it is that branch of chemistry that deals with all the elements and the compounds except those compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. प्रीवियसली हमने स्टडी किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने कहा था कि कोवलेंट बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जब बनेगा वी विल हैव हाइड्रोकार्बन्स और उनके जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे उन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उस स्टडी को, उस ब्रांच को हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो इसमें उन सारे कंपाउंड्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी कंपाउंड्स होंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा होंगे, उन्हें हम कहेंगे इनऑर्गेनिक. And now the branch will be inorganic chemistry, जैसे कि formation of glass, cement, ceramics, metallurgy यानी कि metals को उसके ores में से, उसके minerals में से extract करना, अलग करना. Ceramics, जब भी clay को बहुत ज़्यादा high temperature पे heat किया जाता है, we get different types of materials from it. हम उससे मुख्तलिफ shapes की चीज़ें बना सकते हैं. जब आप clay को low heat पे heat करते हैं, you get earthenware. When you heat the clay at a very high temperature, you get stoneware. And when you heat it at super temperature, we call it porcelain. And all of these are ceramics. And all the ceramics are inorganic in nature. Inorganic chemistry. And similarly, metallurgy. किसी भी मेटल को, जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, उसको उसके ओर में से, उसके मिनरल में से सेपरेट करना, एक्सट्रैक्ट करना, वी कॉल इट मेटलर्जी. वी विल लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन आवर लेटर टॉपिक्स. सो पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. So in that you will write their definitions and examples. Definition of organic, which contain carbon and hydrogen with a covalent bond, while inorganic compounds they usually do not have carbon and hydrogen together. उनमें कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर नहीं है, जैसे कि NaCl, नो कार्बन नो हाइड्रोजन. कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन तो नहीं है, सो इट इज नॉट ऑर्गेनिक. HCl, no carbon, no hydrogen. So all of these are inorganic, while on the other hand, the DNA, sugar, methane, all of these contain carbon and hydrogen together, and we call them organic. Next is biochemistry. Bio means living and chemistry is for chemical. So it means all the chemical reactions जो भी किसी living organism में होंगे उसे हम कहेंगे, उसकी स्टडी को हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री. जैसे कि आप ये स्टडी करें कि कोई भी मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कोई भी न्यू मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में कैसे बन रहा है, कोई मेडिसिन हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से कैसे बना सकते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की और चीज़ें एग्रीकल्चर में इनका इस्तेमाल. वी यूज ऑल ऑफ दीज स्टडीज इन बायोकेमिस्ट्री. सो DNA, a biomolecule, biochemistry. Medicines obtained from plants, obtained from animals, biochemistry. And same goes for the digestion and formation of biomolecules. किसी भी चीज की डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, किसी भी चीज की फॉर्मेशन हमारी बॉडी में, और इस किस्म के केमिकल रिएक्शंस जिनमें ये काम हो रहा है, वी कॉल देम बायोकेमिस्ट्री.
Next is industrial chemistry. It is that branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale. On a very large scale, जब आप कोई भी chemical compound manufacture करते हैं, बनाते हैं, we call them industrial chemistry. उसकी स्टडी को, उसकी फॉर्मेशन के मेथड्स को, कि किस तरीके से आप कोई भी केमिकल बनाएंगे और उस केमिकल का को कमर्शियली आप सेल करेंगे ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. जैसे कि अमोनिया फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और आप उसकी जब मैन्युफैक्चरिंग करें और उसको जो है वो फर्टिलाइजर के तौर पर सेल करें, और ये अमोनिया मैन्युफैक्चर कैसे होगी, ये सारे कंपाउंड्स कैसे बनेंगे ऑन इन एन इंडस्ट्री, वी कॉल दिस स्टडी टू बी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. So the use of fertilizers and the formation of ammonia all comes under the branch of industrial chemistry. Nuclear chemistry, the branch of chemistry that deals with radioactivity, nuclear processes and properties. So let's study these three terms one by one. Radioactivity. Some elements, some atoms ऐसे हैं जो नॉर्मल हालत में कंटिन्यूसली ब्रेक करते हैं, कंटिन्यूसली फॉर्म होते हैं. वी कॉल देम रेडियोएक्टिव. जब वो टूटते हैं दे गिव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी, एंड हम इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, किसी भी मेडिसिन के लिए, मेडिसिन के तौर पर, यानी कि ऑपरेशंस के दौरान, जिसे हम रेडियोथेरेपी कहते हैं. कैंसर्स के पेशेंट को इस मेथड के जरिए से ट्रीट किया जाता है. सिमिलरली हम लोग फूड की प्रिजर्वेशन के लिए, जैसे कि यहाँ पर गैमा रेज जो कि एक रेडियो एक्टिव रेज है, उनको जब हमने एक फूड पार्टिकल में से पास किया तो उसमें से जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो मर जाएंगे, एंड विद बिकॉज ऑफ दैट नाउ द फूड विल बी एबल टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब ये बहुत देर तक बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, खराब नहीं होगी. सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम हर वो चीज जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के साथ डील करेगी, रेडियो एक्टिव एटम्स के साथ डील करेगी, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री. हम इसको इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान रेडियोथेरेपी यूज की जाती है, इन आइसोटोप्स की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को बहुत देर तक रखने के लिए ताकि वो खराब भी ना हो और उसको इस्तेमाल भी किया जा सके, एंड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर वी यूज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री. So for today you learned inorganic chemistry, biochemistry, industrial and nuclear chemistry. In all of these you will learn its definitions and examples together. These definitions and examples, these terms will come as short question in your paper. So you must learn it by heart. Alright students, that is all for today. Thank you and Allah Hafiz.